Further consideration of the motion for consideration of the Protection of Children from Sexual Offences Amendment Bill 2024, moved by Dr. Fauzia Khan on 7th February 2025. On 7th February 2025, Sri Sanjay Yadav has not concluded his speech while participating in the discussion. I now call upon Sri Sanjay Yadav to continue his speech. Dr. John Britas. Thank you, sir. Sir, I compliment Fauzia Khan ji for bringing this very important bill. And let me just admire her because she has been one person who has been steadfastly taking up issues, genuine issues, that needs addressal and also redressal. Sir, as you rightly know, POCSO Act was path-breaking in 2012. But after that, there were a couple of amendments. The reality is the ecosystem have drastically undergone changes. The way in which our children are subjected to harassment in different forms, the technological revolution that has happened. Honorable Ministry is here. He is aware about the internet penetration, the impact of social media, the encrypted messaging app, which he wants to make it accessible to the government agencies, and the data-driven exploitation that is happening. The huge impact of the ecosystem that has come on these hapless children. So rightly, Fauzia ji has suggested that this act should undergo certain changes in tune with the times. I fully subscribe her views and support her. Sir, please allow me to submit a statistics, which is very relevant, sir. You would be interested to know that. We introduced fast-track courts so that at least these vertical should have a mechanism that should be in tune with the time of giving justice to our hapless children. But, sir, 1,37,000 cases are still pending. That means the system is suffering a fatigue. Who is responsible? I would say that. The procedural wrangles, lack of coordination, lack of trained person. And sir, this is very important. Our approach should be victim-centric reforms, sir. Unfortunately, we don't see these issues from the standpoint of the victims. Sir, across the globe, Epstein files are being discussed. Epstein files. You know the importance of Jeffrey Epstein files, which is rocking US politics. It simply means that minors are trafficked, silenced, and abused by powerful men for years together. The Epstein files in the US has created a ruckus. And you know who are all mentioned there. Even high and mighty have been mentioned in these Epstein files. You know, sir, Jairamji wants to know those persons who have been mentioned in Epstein files, which I don't want to give, because at least my friend Trump is involved. You look at me. You look at me and speak. You got only 5 minutes. Sir, I would be happy to look at you only, sir. It's such a delight to look at the chairman and speak, sir. Sir, now there are other issues also. Now you know that Kerala has been the first state in the country to launch the Nirbhaya policy for the care and protection of women and children in distress. Kerala is rehabilitating POCSO survivors by using, so this is very important, 100% of its funds, and for this purpose, Kerala government has allocated 12 crores each for the last 2 years. The government of India, Naddaji, I want your attention. You had promised that
Each district, you will grant 10 lakh rupees for this purpose. We have sent in our proposal for 1.4 crore, 10 lakh is each district. For so many years it is pending with your ministry. If you are committed to this cause of protecting the children, protecting the victims, rehabilitating the victims, before conclusion of this debate, you will stand up and say that we are clearing 1.4 crore, which the Kerala government deserve. I am expecting a reply from Honorable Naddaji. Sir, I am very happy that the members across the political spectrum are very sensitive to the issues. For example, J.B. Metraji, today, my friend, esteemed colleague from Kerala, today introduced a bill, Sexual Harassment of Women Prevention Bill. Contextually correct, sir. She has been mum in Kerala. She is very vocal in the Parliament House. Her own colleagues are under cloud there in Kerala, which is creating a mayhem in Kerala politics. But she had, Jaramji, you should compliment your junior colleague coming with a bill like that. But, yes, colleague of that party. Yes, yes. No. Now they will point fingers at them. But I am very happy. She's my younger sister. But J.B. Metraji, you should open your mouth when things happen in Kerala. Your colleagues are speaking. But sir, coming to this topic, sir. Sir, there are pertinent issues regarding this. Sir, I am just giving you insight to this. Sir, there have been observations from the Supreme Court. One issue I would say, sir. See, when there are issues between a teenage boy and a teenage girl, many a time the boy is implicated. So the Supreme Court and Madhya Pradesh High Court also, is it correct? The court also said that you need to view it differently if the boy is not mature. Madhya Pradesh High Court, in case of Rahul Chandel versus State, urged the center to reduce the age of consent to 16 years in order to address the injustice going on with adolescent boys who enter into consensual sexual relationship. The Supreme Court also said about it. I remember former Chief Justice Chandrachud, he said that age of consent under POCSO, which is at present 18 years, poses difficult questions for judges dealing with such cases, and the growing concern surrounding this issue needs to be considered by the legislature, sir. So I feel that Fauziaji has put across this thing. I don't know how we have to deal with it. The government has to come forward. The minister is erudite and enlightened. He should guide this honest, august house as to how to tread on this point, sir. Now, sir, the most important, it's abuse of silence, sir. Sir, you know that 70-80% of the harassment cases, it's not been spelt out of fear. The children are mum. And the system doesn't want the children to speak out. That is more important, sir. In the schools, starting from the schools, see hostels, coaching centers, religious institutions, sports academy. You look at this 360 spectrum where the children move. 70-80% of the cases, the children doesn't come forward. Children do not come forward and give the information, sir. The moment the children come forward, there are procedural issues. Even the parent side, sir, I will say that. There is a taboo that is surrounding the abuse of children. Even the parents at home, many a time, the relatives would be the culprits in such harassments, such abuse. So what happened is that the silence starts at home. How are you going to deal with it, sir? Sir, I would suggest that Honorable Minister should listen to me. There should be proper awareness given to the children and the parents and the stakeholders, including the teachers and other social leaders. So, in the syllabus also, we can make certain changes like that, because the children, many a time, they don't know whether it is abuse or not. They may not be in tune with the reality. They will know only after growing up, sir. So there are many instances when these people speak out
after attaining a certain level of age. Because then only they say that what we were subjected to when we were children, kids, going to relatives' house was a harassment, was an abuse. They realized that, sir. Sir, I would recommend that as part of our syllabus, school syllabi, we need to make sure that a proper awareness should be imparted to the children. Sir, please don't look at the watch. I'm making pertinent points. This is a private member's business, sir. There is flexibility and liberty, sir. Now, sir, what I'm trying to say is that, see, protecting our children from abuse is a noble cause because we are protecting the future citizens of this country. Think about the trauma that is being inflicted on these children, sir. Sir, many a time, brilliant children, they come silently to the home. They will not divulge what has happened to them in the school or in the coaching centers. And the talents, precious talents, we lose, sir. And the number of harassments and abuses, nobody has an idea about it. The experts make it a point saying that 70-80% go underreported, sir. And the police system also, sir, the judicial system also, we need to sensitize them, sir. And moreover, we have to bring in trained activists into this arena. That is very important. Sir, who are dealing with this, sir? The ordinary police station may not be in a position to deal with it, sir. Those people who are trained, like the teachers who are trained for, say, special, differently abled children, we need to have specially trained workforce to deal with such a system, sir. And moreover, sir, there should be a system of rehabilitation, giving them a therapy to bring them back to our society, sir. So, whole plethora of things which we can do, but we don't do, sir. Sir, there are certain provisions which have become obsolete, as I told, because of the ecosystem that is evolving. So I would humbly request that the government should come forward, because the bill is slightly old, though there are amendments. But since Fawziaji presented a beautiful bill covering all the aspects, wider spectrum, I would urge upon the government, look at those provisions and imbibe and incorporate, if at all they don't accept it. But since it is I would say that a neutral agnostic bill which doesn't have any political overtones, I would urge upon the government and this August House that let us all jointly, unitedly pass this bill, sir. Thank you very much, sir. Sri Santosh Kumar P. No. Dr. Ajit Madhavrao Kopchade. माननीय सभापति महोदय, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण, ये पॉक्सो अधिनियम एक विशेष कानून है जो बच्चों के खिलाफ लैंगिक अपराधों के मामलों में निपटने के लिए 2012 में क्रियान्वित हुआ है। मैं तथ्यों के आधार पर जाना चाहता हूं, क्योंकि बच्चे हमारा भविष्य है और बच्चे जो है हमारे सुनहरे भारत का और विश्व हिंदुस्तान का अगला हमारा भविष्य है। ये काफी संवेदनशील विषय है। इस संवेदनशील विषय को हमारी सरकार ने भी उसी संवेदना से लिया है और 2012 में ये जो कानून क्रियान्वित हुआ है, यह अधिनियम बच्चों के हितों और भलाई की रक्षा के लिए और उनके उचित सम्मान के साथ लैंगिक हमला हो, यौन उत्पीड़न हो, पोर्नोग्राफी हो, उसके अपराधों से बच्चों की सुरक्षा प्रदान करता है। यह विधेयक माननीय सदस्य ने धारा 19, धारा 21, धारा 25, धारा 33 और धारा 43 के संशोधन करके एक नया अध्याय मुआवजा और वित्तीय सहायता सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखा है। माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तावित विस्तृत संशोधन और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस बारे में बहुत संवेदनशील है और इस विषय में सारे दृष्टि से विशेषतः जो किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस अनावश्यक विलंब के बिना ये अगर कार्रवाई करना हो तो तुरंत 24 घंटे के अवधि के भीतर इस बालक को वो उपधारा 1 के अधीन अगर किसी ने अपराध किया है और किए जाने की अगर संभावना है तो बाल कल्याण समिति के समक्ष
ये रिपोर्ट और विशेष न्यायालय इसके माध्यम से बहुत ही तुरंत गति से ये काम करता है। पॉक्सो अधिनियम की धारा 19(6) के मामले की सूचना 24 घंटे के भीतर सीडब्ल्यूसी और विशेष न्यायालय सत्र को और न्यायालय सत्र को देने की इसमें प्रावधान है। बच्चे की देखभाल करना, बच्चे का संरक्षण करना, उस उपनियम 4 के तहत एसजेपीयू और पुलिस के लिए बच्चे को सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत करने और मूल्यांकन का अनुरोध करने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया प्रदान की गई है। माननीय सभापति महोदय, इस विषय में पुलिस हो, न्यायपालिका हो, महिला बाल कल्याण मंत्रालय हो या हमारा आरोग्य मंत्रालय हो, इन्होंने सब मिलकर एक संरक्षित रूप से हमारे इस हिंदुस्तान के भविष्य को पूरी तरह से संरक्षित रूप से इसको देखा है। इसमें न्याय हो, इसको जरूरी कानूनी कार्रवाई करना हो, इस विषय में हमारे इस आने वाले जो हमारी उमलती हुई जो कली है, इसका संरक्षण करने का एक बहुत अच्छा विषय इसमें किया है, जिसके माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बच्चे की देखभाल संरक्षण तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ उसका प्रबोधन करना, उसके साथ में एक अच्छी तरह से उसको एक सुरक्षित वातावरण में रखना, और ये हमारे न्यायालय के माध्यम से, पुलिस प्रशासन के माध्यम से और सरकार के माध्यम से ये सारा ये बच्चे को जब लाते हैं तो उसके बाद में उसकी पूरी सुरक्षा करना, उसका वेरिफिकेशन करना और आपराधिक मामले को तह तक जाकर इसके पीछे उस बच्चे को न्याय मिलाने से लेकर उसको मुआवजा देने तक हमारा जो सरकार है ये पूरी तरह से कटिबद्ध है। यह ध्यान देने की योग्य है कि जब से पॉक्सो अधिनियम की धारा 19 में आशंका का शब्द का उपयोग किया गया है, कानून ने सावधानी पूर्वक विशेष रूप से प्रावधान किया है। धारा 21 के तहत ऐसी आशंका के लिए कोई समान दंड नहीं होना चाहिए। यह माना जाता है कि यह चूक अनजाने में नहीं हुई है। इसके अलावा आशंका के आधार पर दंडित करने से बहुत सारे परिणाम हो सकते हैं। वास्तविक अपराध के बजाय केवल आशंका की रिपोर्टिंग की अनुमति देने और असत्य या कल्पित शिकायतें भी हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप ठोस साक्ष्यों के अभाव से व्यक्ति के ऊपर एक अनुचित कार्रवाई हो सकती है। वो किस प्रकार हो सकती है? जैसे बच्चे की गवाही को विश्वसनीयता जो होती है वो कमजोर करना हो, अभियोजन के लिए कानूनी बाधाएं उत्पन्न करना हो, न्यायिक परिणामों को प्रभावित करना हो, जिससे पीड़ित के हितों को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके तहत यह प्रक्रियागत विवाद न्याय में बाधा उत्पन्न कर सकता है। हमको उस बच्चे को न्याय देना है, कठोरता से कठोर दंड सामने वाले अपराधी को हमको देना है, और इस अधिनियम के उद्देश्य के अनुरूप बाल अनुकूल दृष्टिकोण बनाए रखना यह हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। पॉक्सो अधिनियम में यौन अपराधों के पीड़ितों को मुआवजा देना और वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये इसमें ऑलरेडी प्रावधान है। धारा 33(8) में उचित मामलों में विशेष न्यायालय द्वारा निर्धारित मुआवजे का भी प्रावधान है। मेरे मित्र को मैं बताना चाहता हूं कि सीडब्ल्यूसी द्वारा राहत की अनुशंसा किए जाने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। नियम 9(a) ये एफआईआर दर्ज होने के बाद किसी भी चरण में बच्चे की राहत या पुनर्वास ये जरूरतों को पूरा करने के लिए और इसके लिए अंतरिम मुआवजे का भी हमारे पास प्रावधान है। विशेष न्यायालय को मामले को इस निपटान के दौरान अंतिम मुआवजा देने की भी सिफारिश का इसमें अधिकार दिया गया है। तो सरकार ने पूरी तरह से इसके ऊपर बहुत ही नाजुकता से और इसमें जुर्माना लगाने और भुगतान की प्रक्रिया में भी हमारे सीडब्ल्यूसी है, डीसीपीयू है, इसको सुनिश्चित करना चाहिए। ये करती भी है, और न्यायालय द्वारा लगाए गए जुर्माने को कोई भी राशि जो है पीड़ित को भुगतान कर जाना ये तुरंत बहुत आवश्यक होता है, और ये वास्तविक ये बच्चे को भुगतान जाता है। मैं माननीय सभापति महोदय आपको ये कहना चाहता हूं कि जो बच्चे को पेश किए जाने के बाद हमारी जो जिला स्तर की जो बाल कल्याण समिति होती है, ये बाल कल्याण समिति में एक पीडियाट्रिशियन होता है, इसमें काफी सारे हमारे सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि होते हैं, इसमें काफी सारे एनजीओ के लोग होते हैं। ये सारे लोग मिलकर उस बच्चे की मानसिकता को
संभालते हुए और उस विषय में सारे दृष्टि से तथ्यों के आधार पर इस बच्चे का आगे चल के भविष्य, इस बच्चे के बारे में, क्योंकि ये बच्चे को संभालना ये हमारे राष्ट्र की संपत्ति है, इसलिए इस आधार पर ये जो प्रावधान किया गया है बाल कल्याण समिति द्वारा, इस पर काफी प्रमाण में हमने संशोधन भी किया है और बहुत अच्छे प्रमाण में इसका उपयोग हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, केरल के उच्च न्यायालय ने एक XXX बनाम केरल राज्य में मामले में एक फैसला सुनाया। पॉक्सो अधिनियम के तहत झूठे आरोपों के कारण निर्दोष व्यक्तियों को भी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, जिससे गलती से दिया गया कारावास भावनात्मक रूप से परेशान करना और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना भी शामिल है। न्यायालय ने सुरक्षात्मक प्रावधानों के दुरुपयोग से बचने के लिए कानूनी कार्रवाई करने से पहले ठोस सबूतों की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसी तरह कलकत्ता जो उच्च न्यायालय है, उसने भी झूठे पॉक्सो मामले के खिलाफ 2024 के कार्रवाई में राजनीतिक दबाव में लगाए गए झूठे आरोपों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। इसमें झूठी शिकायतों की जांच करने का निर्देश भी दिया। इस बात पर जोर दिया कि अटकलबाजी या जबरदस्ती के आरोप न्याय की मांग करने वाले वास्तविक जो पीड़ित होता है उसकी विश्वसनीयता को कमजोर करता है। हम उसकी विश्वसनीयता को कमजोर नहीं करना चाहते। हमारी न्यायपालिका भी हमारे साथ है। न्यायपालिका भी इस विषय में बहुत ध्यान देकर काम कर रही है। इन निर्णयों से यह पता चलता है कि आशंकाओं की सूचना न देने पर दंड लगाने की काल्पनिक शिकायतों को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे व्यक्तियों के विरुद्ध अनुचित कार्रवाई हो सकती है। आपराधिक कानून और कानूनी कार्रवाई शुरू करने से पहले स्पष्ट सबूत मिलना बहुत जरूरी है। यहाँ जस्टिस राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस बनाम यस हरीश मामला है। 2024 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पॉक्सो अधिनियम के तहत दंडात्मक प्रावधानों को सावधानी पूर्वक लागू किया जाना चाहिए। केवल तभी लागू करना चाहिए जब आधारभूत तथ्य किसी अपराध के बारे में उचित संदेह या सबूत स्थापित करते हो। अस्पष्ट या निराधार रिपोर्ट से निर्दोष व्यक्तियों को भी परेशान किया जा सकता है। माननीय सभापति महोदय, केरल उच्च न्यायालय ने पारिवारिक विवादों और हिरासत संबंधी झगड़ों में पॉक्सो प्रावधानों के बढ़ते दुरुपयोग को बार बार उजागर किया है, क्योंकि जहां अक्सर बिना किसी ठोस आधार पर ऐसे आरोप गढ़े जाते हैं। ये निर्णय इस बात को पुष्टि देता है कि आशंकाओं की सूचना न देने पर दंड देना स्थापित कानूनी सिद्धांतों के विपरीत है, जिसके अनुसार कार्रवाई शुरू करने से पहले उचित संदेह या साक्ष्य की आवश्यकता होती है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, हर चीज को हर एंगल से न्यायपालिका ने देखा है, पुलिस प्रशासन देखती है, हमारा महिला बाल विकास मंत्रालय भी इसको देखता है, हमारा आरोग्य मंत्रालय भी इसको देखता है। इसमें मुआवजे की भी बात आती है, बाल कल्याण समिति का भी विषय हमने बताया गया है। इसमें बहुत सारे चीजें ऐसी है कि इस बालक को जिस प्रकार की देखभाल होनी चाहिए वो उसी प्रकार से पीडियाट्रिशियन हो, एडोलेसेंट पीडियाट्रिक्स हो, इनके माध्यम से इनकी मानसिक अवस्था का जांच करना, इनको पूरी तरह से संरक्षण देना, इस बच्चे को अपनी माँ की तरह संभालते हुए अपने माँ का प्यार देना, क्योंकि ये बच्चे के मन पे एक गहरा सदमा होता है, एक संवेदनशील मामला है। जैसे माँ अपने बच्चे को संभालती है, उसी तरह से मैं एज ए पीडियाट्रिशियन बोल के एक बाल कल्याण समिति का मैं सदस्य था। बहुत जगह पर ऐसे अपराध हुए थे। मैं खुद जाकर इन बच्चों को अपने माँ, हमारे घर परिवार को साथ में लेकर इस बच्चे के साथ में हम खेलते थे, इसके साथ चर्चा करते थे। उसको उस जो संवेदना थी, वो जख्म था, वो जख्म पे मलहम लगाना इतना ही काम नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर जो भावना का उत्पीड़न जो होता है, उस भावना से उसको हमको बाहर निकालना पड़ता है। और सरकार का रुख उस तरफ से ही, जिस तरह से हम सोचते हैं उसी तरफ से सरकार का रुख है, क्योंकि सरकार ने इस विषय को बहुत संवेदनशील लिया है। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि ये 3 टायर सिस्टम है, इसमें जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो बहुत जगह पर बच्चों के खिलाफ जो अपराध होते हैं
वो सही मायने में हमने देखा है कि जो अपराधी है उनको दंडित तो किया जाता ही है, लेकिन बच्चों का भी मानसिक संरक्षण देना और बच्चों के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं होना, ऐसा मेरा यहाँ पर कहना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारी, हमारे पुलिस के अधिकारी, इनका भी बीच बीच में समय समय पर इस विषय में प्रशिक्षण होता है, इनका आपस में मेलजोल होता है, इनका आपस में इस विषय में संवाद भी होता है। बाल देखभाल के संवेदनशील जो संस्थानें हैं, प्रभारी जो हमारे वहाँ के व्यक्ति है, वहाँ के हमारे कर्मचारी है, अन्य कार्मिक लोग है, इनका भी इस विषय में प्रशिक्षण होता है। राज्य स्तर पर भी बाल कल्याण समिति जिला स्तर तक इसका अलग रूप से एक प्रशिक्षण होता है, लेकिन सरकार इसको पूरी तरह से संवेदनशीलता से लेती है, सरकार इसको गंभीरता से ले रही है और हर विषय में ये जो कानून है, इस कानून के जो संवेदनशीलता है, इसके लिए लोगों में जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित करना, हमारे जो सरकारी अधिकारी है, हमारे जो गैर सरकारी संगठन है, हमारे नागरिक के समाज के सब संगठन है, हमारे जो खास करके जो टीचर्स है, हमारे जो सारे प्राइमरी टीचर्स है, जो सेकेंडरी टीचर्स है, इन लोगों का भी इस विषय में जागरूकता का कार्यक्रम सरकार आयोजित करती है। इसमें पब्लिक अवेयरनेस का भी कार्यक्रम हो रहा है। हमने देखा है सरकार ने इसको जन आंदोलन के स्वरूप में लिया है। हमारे महाराष्ट्र के सरकार में हमने इस जगह जगह पर ऐसे विषयों के लिए जनहितकारी, जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को लेकर इन सारे अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को, न्यायालयीन अधिकारियों को, इनको इस विषय में प्रबोधन का कार्यक्रम किया है, क्योंकि सिर्फ दंडित करने से ये अपराध की संख्या कम नहीं होती है। इसके लिए ये जनता की भी जिम्मेदारी है, हम सारे सांसदों की भी जिम्मेदारी है, हमारे समाज की भी जिम्मेदारी है। सब कुछ अगर सरकार करेगा तो जनता क्या करेगा? इसलिए हमारे माध्यम से हम इसको एक जन आंदोलन भी हमने बनाया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमने जगह जगह पर इसके बारे में एक सामाजिक प्रबोधन के चिन्ह बनाए हैं। जगह जगह पर हमारे सारे डॉक्टर के संगठन ने, जैसे IMA है, खास करके हमारा IAP है जो पीडियाट्रिक संगठन है, इन्होंने भी जनता में जाकर, जैसे हम OPD में बैठते हैं तो OPD में जैसा सोनोग्राफी के खिलाफ PCPNDT का जैसा फ्लेक्स लगा हुआ होता है, उसी तरह से यौन जो पॉक्सो का जो नियम है, इसके बारे में क्या क्या दंड है, इसके बारे में क्या क्या प्रावधान है, ये हम सब पीडियाट्रिशियन हमारे OPD में भी लगाते हैं। इसका मतलब यह है कि हमने इसको बहुत संवेदनशील रूप से लिया है और हम इसको कड़ा से कड़ा स्वरूप देकर इसके माध्यम से हमने जनता के बीच में गए हैं, क्योंकि ये प्रावधान एक तो नियम के अनुसार, कानून के अनुसार, ये जो सारे जो नियम हैं, ये पूरी तरह से सरकार ने जो बनाए हैं, इसके माध्यम से जो हमारे 2012 का जो कानून है, ये बच्चे के और इन लैंगिक अपराधों के खिलाफ का जो कानून है, इसके मामले निपटाने के लिए कड़ा सा कड़ा रुख अपनाना जरूरी है। इसकी ये बच्चों के हितों के और उचित सम्मान के लिए और एक लैंगिक हमला, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी के अपराधों में ये हमारा जो नियम है, संशोधन जो विधेयक है, ये बच्चों की सुरक्षा प्रदान करता है। यह विधेयक हमारे देश के हित में है और इसके माध्यम से हमारे बच्चों का संरक्षण करना, ये हमारी जागरूकता है। हमारे बच्चों का पूरी तरह से प्रोटेक्शन करना, ये हमारे सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें ये सारा जो विषय है, ये संवेदनशील विषय है और इस विषय के माध्यम से हम इस माध्यम से जो 2012 का जो हमारा जो अधिनियम है, ये विशेष जो कानून है, ये बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है, ऐसा मेरा कहते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। Now, Santosh Kumar P. Sir, I take this opportunity to congratulate Dr. Fausia Khan for suggesting certain amendments to the existing bill. Sir, there are certain new issues to be highlighted. Number one, the High Court of Delhi suggested that there is blatant misuse of the provisions of POCSO Act. Of course, we need to strengthen the Act on one side. That is why I support her. But at the same time, there are instances of misusing the provisions of this Act.
So how to tackle this particular situation is a matter of concern. So while we have to uphold the rights of children, especially in divorce cases, to win matrimonial vows, that was the term used by the High Court, to win these matrimonial vows, children are being used by parents, either by husband or wife. This has happened in many cases. As was rightly pointed out by Kerala High Court and many other High Courts, including Delhi, this is an area of concern. So I would like to suggest that we need to amend this Act further to address this issue. Second, sir, there are a number of cases related to political party leaders, school teachers, religious leaders, and those who occupy very high position in our society. Yes, sir. Then I think that all political parties should make it a point that all those who are accused of these types of crimes, and if the court takes cognizance of the same, must take disciplinary action against them immediately. This is what we can do at the point of. There are a number of instances. I don't want to mention any name here. For example, there is a very famous case against a Karnataka political leader. Not to harass him, but it's a matter of fact. If I say the name, it will be a big issue here. Then no, Santosh, because of his political enmity or whatever it is, he is saying his name. But it's a reality. That is, the case is going on, and court did not grant him anticipatory bail also, it seems. Anyway, there are instances. And my learned friend, John Bittas, already quoted the case from Kerala. A political party had to wait days and days, not to harass them. There are hundreds of gentlemen in that political party. I know most of them, some of them, of course. But at the same time, they had to take, dilly-dallying the process. How to, give him a chance to escape him. Sir, the point is... You name the CPI leader. You name the CPI leader. No. Sir. Why? Sir. He's telling for all the party only. He's not telling about Congress alone. Sir. Let him speak. Let him speak. Sir. I never... Honourable member, you please sit. Let him speak. Sir, let me tell you, I never expect this kind of a behavior from a learned colleague, senior colleague of which I'm proud of, Jairam Rameshji. And I'm just telling you why they are getting so agitated. My point is very clear. Actually, I'm here to support her cause, and I should not skip this occasion. That was my sole intention. What is my take? My take is that all political parties, if you can someone's name in CPI, I'm very happy, because I will tell you, 1 lakh rupee now. If you say a CPI leader's name, leave it. 1 lakh I can give you in cash. So leave that part. Look, whatever it is, if you say, CPI, leave that part. Don't try to insert our part, something different. The point is that whatever, and the thing is that political parties must have a guideline. It is not to harass the Congress, but it's a reality, sir. The one who reads Malayalam newspapers and the one who uses Malayalam channels, it's a public knowledge. The chairman knows it. So why should we come and speak? The reality is... Don't mention about anybody. You just speak about this subject. See, sir, why don't you raise that? I don't know why they try to divert the attention. My point is that there are accusations. Sir, the point is that there are hundreds of accusations against political party leaders. It's a matter of fact. I don't want to spare any political party. If you can point out my party's case, I am very glad to hear that. And I'm 1 lakh. I'm challenging MSG openly. It's not. I know this type of challenge is not a good one, but I'm sure about my party. Leave that part. No. Your colleague is very rich, it seems. Which colleague? Which colleague, sir? No. See, I'm talking about my political party. He is trying to protect you. Sir, let us not divert from the topic. The point is that there must be a guideline, or it must be incorporated in the constitution of each and every political party, that those who are accused of these kinds of crimes must be expelled or dismissed or suspended without
offering, dilly-dallying without offering lame excuses. This is the only thing. So I can name a number of other leaders also. So I don't want to make it a political issue because Sir, why it is an LDF, UDF, India, NDF issue you're making it? No, it's a question of children and the future and the question of the morality of the society. I know they are very much annoyed because of these developments. So what can I do? I can't help them. So anyway, sir, I support the noble cause behind this particular introduction to this existing bill. And thank you for allowing me time and thank you for patiently hearing. Dr. V. Sivadasan ji. Thank you, respected Chair, for giving me the opportunity for raising my opinion here. First, I congratulate Fauziya Khan for taking the initiative to introduce such a bill. Children is the future of the nation. So, they should be protected by the government. They should be protected from all kinds of assault. Sir, the question is, how can we protect the children from sexual assault? Union government has the primary responsibility of the protection of the child. Sir, the proper legal framework and the strict actions is very necessary to protect the child from these kind of assaults. But also strong social security measures also necessary to protect the child from sexual assault. Sir, the lack of food, lack of shelter, and the lack of their basic needs are creating the space for sexual offences. Sir, so the government should address the basic needs of the children, but what is the real condition of the children in India? In our country, what is the status of the children? Sir, they are exploited by various ways. In the great stanza of the poem of great poet Neruda, he told us, come and see the blood in the street, come and see the blood in the street. Sir, here I like to say, come and see the children on the street. Come and see the children on the street. Sir, when in this winter, in the capital city of the great nation, Delhi, when the cold is in the peak, sir, our children of our nation are sleeping on the road without a single piece of woolen cloth. Sir, in this winter, our children are walking on the street without shoe. Sir, in this winter, they are walking on the street and begging on the street for their daily meals. Sir, in this capital of our nation, near the presidential estate and near the palace of the Prime Minister, children are begging for single piece of bread. Sir, in this winter, the thousands of mothers are standing and crying on the veranda of the hospitals because of the lack of the money to pay the hospital bill. Sir, health is the universal right of the people, but I am sad to say India is the country that has the largest number of children who die due to the lack of medical treatment. Sir, India is the country that has the largest number of mothers who die during childbirth due to the lack of proper medical attention. Sir, yet they are spending only pittance for public health. Sir, here in our nation, Child Protection Act is here, Right to Education Act is here, but these legislative actions are not sufficient to save the children from their pathetic life. Sir, in the year 14-15, the health budget of the Union government was 0.31% of the GDP. But in 2026, it is only 0.27%. Sir, respected Chair, even the 18.68% of the revised estimate, Andaji is sitting here, had not been utilized of
31st January 2025, sir, which is 16,000 crore rupees. But the national government is not ready to give the money to the state. Sir, according to the data of health expenditure of the government in US, 13.9%, Germany 10.1%, UK 8.9%, and Canada 7.9%. Sir, but in India, it is only 0.27%. It is affecting the children of our nation. So if the government is interested to protect the interest of the children, then the government should spend more money for the health sector, for the protection of the children. Sir, even if you consider the combined expenditure of the union and states, then also it is only 1.2% of the GDP. Sir, they have spent thousands of crore for other expenditure like statues, but they are not ready to spend money for the hospitals for the children and mothers. What is the vision for the development of the health sector? What is the vision of the protection of the children in our country? Sir, do you know what are the conditions? They are asking for more doctors in our children's hospital. They are asking for more doctors in our mother's hospital, but they are not getting doctors and they are not getting medicines in the hospital. Sir, the children's are necessary for the playgrounds. They are necessary. They have the playgrounds and the Anganwadis are necessary things for the children. Sir, in Malayalam, I know, you know very well Malayalam. There one poet, Madhusudanan Nair, wrote a stanza, Oro Shishirodhanatilum Kelpunyan, Urukodi Ishwara Vilabam. Oro Shishirodhanatilum Kelpunyan, Urukodi Ishwara Vilabam. I hear the cry of crores of gods in the cry of a little child. Sir, this is the attitude of us to the child. Respected Chair, the government, the authorities are not ready to hear the cry of the children. So my humble request, please listen, please hear the cry of the child. Sir, respected Chair, the Anganwadis are not getting proper attention. Saksham Anganwadi portion allocation, it was reduced. Sir, respected Chair, the Anganwadis should be strengthened for the protection of the child in our nation. In schools, they should get proper meals, proper midday meals, sir. So government should allocate proper money for midday meal. Now, sir, respected Chair, the Anganwadi these midday meal workers are getting only 1,200 rupees as their wage per month. It should be increased. Otherwise, how can they prepare the food for the child, in the schools? So, right to education is here, but the children in the schools are not getting proper food and health facilities. So, respected Chair, we, the people of the country, should protect our children through the measures, social security measures. So, union government should take necessary action for the protection of the children in our country. This is my humble request, to spend more money for protect the children, to make the legal framework for protect our children. Also, government should take and executive should take strong action against the culprits of the sexual assault. This way, sir, respected Chair, we should protect our future. We should protect our children in our country. Thank you, sir. Thank you. Thank you for allowing the time for the discussion. Dr. Anil Sukhdev Rao Ponde. सभापति महोदय, आज फौजिया खान जी ऑनरेबल सांसद, इन्होंने जो गैर सरकारी विधेयक रखा है उसका कंपैरिजन पॉक्सो के अधिनियम के साथ में जब मैं करता हूं तब मुझे महसूस होता है कि पॉक्सो के अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन से पहले ही सभी अधिनियम शामिल है। माननीय सांसद द्वारा जो प्रस्तावित संशोधन जो किया है वो पॉक्सो को ज़्यादा मजबूती देने वाला नहीं लगता। लगे तो कुछ बातें
जैसे आशंका होने के बाद में उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करो, तो पॉक्सो के अधिनियम को शायद कमजोर बनाने वाला है। इसलिए मैं ये प्रस्ताव का, गैर सरकारी विधेयक का समर्थन नहीं करता, लेकिन विरोध करता हूं, लेकिन एक अच्छी चर्चा माननीय सांसद के माध्यम से, अरे अभी तो मैं बोलने, हाँ, बोलते जाओ। ये चर्चा के माध्यम से एक अच्छी बच्चों के क्राइम के बारे में चर्चा हो रही है, उसका मैं स्वागत करता हूं। Everybody, we are giving time today. Please. You want? Yeah, I am giving him time also. Sir, I am giving him time also. सभापति महोदय, दुर्दैव है कि जयराम जी रमेश जैसे व्यक्ति जब बच्चों के क्राइम के बारे में चर्चा हो रही है उसको विरोध कर रहे हैं। अब बच्चों के क्राइम के बारे में बच्चों का प्रोटेक्शन करने के लिए भी कांग्रेस जिंदा नहीं रहेगी तो क्या होगा? यानी इंडी गठबंधन बच्चों के क्राइम के बारे में फौजिया खान जी जिन्होंने जो चर्चा उपस्थित की है उसका तो समर्थन सभी ने करना चाहिए, चर्चा का समर्थन। आप लगे तो उनके सिफारिशी का समर्थन मत कीजिए। एक मिनट, लेकिन I am going by the list of speakers only. The time allocated is here. No, I am going by the list of speakers only. Chairperson sir, when you are allowing, I think that no member should misinterpret Also we have allocated more time. Honorable Chairperson sir, you are the supreme authority of this house. You are the supreme authority of this house. No. And Don't if worry, you are allowing, don't worry, you please yes, address. sir. So ये टॉपिक ऐसा है कि जो पॉलिटिकल नहीं हो सकता, ये टॉपिक ऐसा है कि जो आइडियोलॉजिकल नहीं हो सकता, ये तो सिर्फ ह्यूमन का है, उसकी सुरक्षा का है, और ये बच्चों के डिग्निटी को संरक्षित करने का टॉपिक है। इसलिए मैंने आपका अभिनंदन किया क्योंकि चर्चा अच्छे से आपने उपस्थित की है। आज एनसीआरबी का डाटा कहता है सर कि भारत में 1.77 लाख क्राइम्स बच्चों के अगेंस्ट में होते। दुर्दैव की बात ऐसी है कि हमारी सरकार पोक्सो का अधिनियम है, अच्छे नियम है, उसके ऊपर अमल भी सभी राज्य कर रहे हैं, फिर भी 70,000 सेक्सुअल ऑफेंसेस रजिस्टर हुए, 70,000। दिस नंबर इज नॉट जस्ट स्टैटिस्टिक्स, दीज आर द ब्रोकन चाइल्डहुड्स। ये तो बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने वाली चीज है। दीज आर द डैमेज फ्यूचर्स, दीज आर द लाइफ लॉन्ग स्कार्स। सर, बच्चे सिर्फ मिट्टी की मूर्ति नहीं होते, ये भविष्य की रोशनी होते। सभापति महोदय, बच्चे सिर्फ मिट्टी की मूर्ति नहीं होते, भविष्य की रोशनी होते। इन्हें चोट शरीर पर नहीं जिंदगी पर लगती है। ये जो स्कार डेवलप होता है पूरी जिंदगी उनकी बर्बाद कर देता है। साइकोलॉजिकल असॉल्ट होता है, वो सिर्फ फिजिकल असॉल्ट नहीं है। सर, ये जो डार्क रियलिटी है कि ये क्राइम कौन करता है? ये क्राइम कोई अनजान व्यक्ति नहीं करता। 95% ऑफेंडर्स ये नोन टू द चाइल्ड रहते हैं। वो फैमिली मेंबर रहते हैं, वो आजू बाजू में रहने वाला पड़ोसी रहता है, वो टीचर रहता है, या स्कूल में काम करने वाला कोई उसको ऑटो रिक्शा से पहुंचाने वाला, व्हीकल से पहुंचाने वाला, वहां कोई चपरासी या कोई काम करने वाला, यानी स्कूल में रहने वाला, केयर गिवर रहता है, उसका पालन पोषण करने वाला, और सबसे इंपॉर्टेंट ये रिलीजियस प्रीचिंग करने वाला भी होता है। यानी धार्मिक रीत्या उसके ऊपर, बच्चों के ऊपर संस्कार करने की जिसकी जिम्मेदारी रहती है, दुर्दैव से अनफॉर्चुनेटली वही सबसे बड़ा कल्प्रिट रहता है। कभी कभी कोच होता है, बच्चे को खेलने के लिए छोड़ते और वो कोच उसका नाजायज फायदा उठाता है। अब ऐसे में ये बच्चा बोल भी नहीं सकता क्योंकि ये बड़ा उसके लिए इन्फ्लुएंशियल पर्सन रहता है। उसका टीचर रहे, केयर गिवर रहे, या कोई पड़ोसी रहे, या उसका रिश्तेदार रहे, वो बोल भी नहीं सकता है। और ये क्राइम बहुत दिनों तक साइलेंटली वो सहन करता है। उसको हम बोल सकते हैं मूक
सहन करना होता है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि एक स्टेट में होता है, सभी स्टेट में यह क्राइम बहुत ताकत से हो रहा है। अब इसके ऊपर यानी एक छोटा छोटा अभी महाराष्ट्र में मालेगांव में हुआ, छोटी बच्ची को चॉकलेट का प्रलोभन दिया और जब उसके ऊपर सेक्सुअल ऑफेंस हुआ, उसको लगा कि वो किसी को बता देगी, रोएंगी, तो उसके बाद में उसको मार डाला। ठाणे में हुआ अभी, नॉर्थ इंडिया में छोटा सा टाउन, 10 साल की लड़की, उसके क्लोज फैमिली एक्वेटेंस में जो रहता था, उसने उसके ऊपर दिनों दिन उसके ऊपर अत्याचार किए। वो लड़की ने क्यों नहीं बताया? क्योंकि उसको बताया गया कि तेरे माँ बाप को भी मैं मार डालूंगा, यानी थ्रेट भी दी जाती है। अब उसके वजह से उसके टीचर को ये नोटिस हुआ कि जो अच्छी खेलती थी, खिलती थी, ये बच्ची आजकल चुप क्यों रहती है, ये आजकल पढ़ाई में इंटरेस्ट क्यों नहीं लेती है। उसके बिहेवियरल चेंजेस जब हुए, उसके अल्टर्ड बिहेवियर जब हुआ, तब उसने टीचर ने पॉस्को अथॉरिटी को बोला और जब उसको इन्वेस्टिगेट किया, उसको कॉन्फिडेंस में लिया, तब पता चला कि उसके घर में ही यह सब बीमारी की जड़ है। सेंट्रल इंडिया में भी हुआ, 13 साल का बच्चा, उसको प्राइवेट लर्निंग सेंटर में इंस्ट्रक्टर यह अब्यूज करता था, सिर्फ एकेडमिक पनिशमेंट देने के नाम से। वो बोल नहीं सका, लेकिन जब बोलने लगा तब वो उजागर हुआ। शेल्टर होम में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, इनको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, उनको धमकियां दी जाती है, और जब रूटीन इंस्पेक्शन होता है तब कुछ बच्चे उसमें से बोलते हैं और ये बातें सामने आती है। एक दुर्दैव की बात मैं फौजिया मैडम से भी बात करना चाहता हूं कि बहुत सारे जगह पे यह मैंने देखा है कि इसमें मिसयूज ऑफ रिलीजन, रिलीजियस हिस्ट्री और रिलीजियस कल्चर, ये भी बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। वो तो 7th सेंचुरी थी, अभी अपन 21st सेंचुरी में है, लेकिन जो रिलीजियस प्रीचिंग करते हैं वो 7th सेंचुरी में किसी ने जिसके ऊपर पूरा विश्वास है, उसी ने समझो बच्चे के साथ में जो कुछ किया होगा, आई विल नॉट अटर द वर्ड बिकॉज आई एम नॉट सपोर्टिंग इट, लेकिन ऐसा वो बताता है कि उस वक्त उन्होंने किया था, तो इस वक्त मैं ये इसका मौला हूं, मैं इस मदरसे का टीचर हूं, तो यह भी जायज है। वो छोटे बच्चे को जब बताता है, तब ये जो कंसेप्शन है, मैडम आपने बिल लाया है, बहुत अच्छा है, और आपके माध्यम से मैं तो चाहता हूं कि सभी ऐसे जो प्रीचर है, जो 7th सेंचुरी में घटना हुई, उसको कंडेम करने का तो छोड़ो, लेकिन उसको हम बोल सकते हैं सम्मानित करके, जब कोई एकादा प्रीचर, वहां का मदरसे का प्रमुख, कोई मौलवी, समझो ये बात बताता होगा। आप सामान्य बात करिए। हाँ, तो नहीं, मैं वही बता रहा हूं सर कि हिस्ट्री की स्टोरीज यह जब बच्चों को बताई जाती है, तो उसमें यही बताना चाहिए कि नो रिलीजन टीचेस द सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चाइल्ड। ये डिक्टम है कि कोई रिलीजन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चाइल्ड का कभी सपोर्ट नहीं करता। इस्लामिक स्कॉलर वर्ल्ड वाइड रिजेक्ट सच मिसयूज। मॉडर्न इस्लामिक jurisprudence requires the maturity, consent and capacity. Any sexual capacity with the minor is considered to be forbidden in any religion. But मैं जो बता रहा हूं उपसभापति महोदय, वो फैक्ट्स है। Speak in general terms, please. So criminals misuse the religion, but religion never supports the criminal. देखिए, एक आपको पता होगा कि मेल चिल्ड्रन है, छोटे छोटे 15 साल के नीचे के बच्चे, तो कुछ भारत के, उत्तर भारत के आगे के कुछ कंट्रीज में, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे आता है, और सोशल मीडिया पे सर अभी कभी कभी तो लगता है कि सोशल मीडिया एंटी सोशल मीडिया हो रहा है।
तो सोशल मीडिया पे आता है कि बच्चाबाजी में ये 10 साल के 15 साल के बच्चे, मेल, आई एम नॉट सेइंग फीमेल, ये बच्चों को डांस करने लगाया जाता है, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। अब इनको भी एक सपोर्ट कुछ लोग करते हैं। ये बड़ा प्रॉब्लम है, ये सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है। अपने बाजू का जो कंट्री है वहां पे भी उसके ऊपर बैन है, लेकिन ये सेंट्रल एशियन कंट्री में जो ये क्रिमिनल कल्चरल प्रैक्टिस है विच इज कॉल्ड एज बच्चाबाजी, तो ये बच्चाबाजी भी कोई रिलीजन की नहीं है। इट इज कंडेम्ड बाय द स्कॉलर्स, इट इज इलीगल इवन इन दोज कंट्रीज, इट इज द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। यूनिसेफ भी बोल रहा है, यूएन भी बोल रहा है, बट इट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट होती है। और भारत में भी कुछ बंदे हैं कि वो करना चाहते, तो ये क्रिमिनल मिसयूज है कल्चर का, आइडेंटिटी का, तो उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। भारत का स्टैंड पोस्को के अंडर एब्सोल्यूट क्लियर है, नो कल्चर, नो ट्रेडिशन, no religious argument can justify the harm to the child. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड में सर आर्टिकल 25 कहता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन डज नॉट प्रोटेक्ट freedom of religion does not protect practices contrary to the public order, morality and health. Sir, sexual exploitation of children violates the POSCO Act और भारत न्याय संहिता का भी एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी एंड डिग्निटी अंडर द आर्टिकल 21. Therefore, no religious text, no historical event, no cultural practice can override the child protection. Child is the primary thing, I will say. Sir, ये हाउस में चर्चा महत्वपूर्ण इसलिए कि इसका साइकोलॉजिकल और सोशल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। जो बच्चों के ऊपर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन उनके बचपन में होते हैं, वो उनके लाइफ में, फ्यूचर लाइफ में डेफिनेटली क्रिमिनल होते हैं, और वही बिहेवियर वो उनके फ्यूचर लाइफ में भी करते हैं। बहुत सारे लोगों ने तो पिक्चर भी देखी होगी, रेड रोज करके पिक्चर आई थी, राजेश खन्ना ने जिसमें काम किया था, तो उसमें भी वही दिखाया गया बहुत सालों पहले। तो सेक्सुअल एब्यूज डैमेजेस द चाइल्ड विच इज ऑफन इनविजिबल, वो मालूम नहीं होता है सर। जख्म छोटे हो या बड़े दर्द तो बराबर देते हैं, और बचपन पर पड़ने वाली चोट पूरी जिंदगी का बोझ बन जाती है। सर, लॉस ऑफ ट्रस्ट, उसका किसके ऊपर विश्वास ही नहीं रहता, ना तो उसके गुरु के ऊपर, ना तो उसके फैमिली मेंबर के ऊपर। ये बच्चे बड़े डिप्रेशन और एंजाइटी में जाते हैं। बहुत सारे बच्चे तो फ्यूचर लाइफ में सुसाइडल अटेम्प्ट करते हैं, और उनकी शादी होने के बाद में भी, स्पेशली इन फीमेल्स, दे आर हैविंग डिफिकल्टी इन रिलेशनशिप, क्योंकि बहुत सारी जो ऐसी फीमेल्स आती है, दे डेवलप द फ्रिजिडिटी, और फ्रिजिडिटी के कारण पूरी फैमिली उसका हस्बैंड भी बर्बाद होता है, पूरी फैमिली भी बर्बाद होती है। लॉन्ग टर्म ट्रॉमा रहता है, एक दिन का ट्रॉमा नहीं है। डर मन में जो बस गया, वो डर ऑल द टाइम रहता है। सर, थोड़ा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ी देर तक मुझे बोलना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर, इसमें सेल्फ हार्म भी बहुत सारा होता है। सर, नहीं, 5-10 मिनट। नहीं, सर, कुछ पॉलिसी, सर कुछ चीजें जो अलार्मिंग है, क्योंकि वो सर कुछ चीजें जो अलार्मिंग है, जो इसमें बढ़ाती है, वो है ड्रग एब्यूज। सर, एमडीएमए, म्याऊ, जिससे सेक्सुअल अराउजल या तो हाइपर सेंसिटिविटी टू द टच वो बढ़ती है, ये बच्चों को दिया जाता है, ये बहुत सारे बच्चों को, तो वो जान भी नहीं सकते, उनमें अराउजल ज्यादा होता है। सर, आज की पोर्नोग्राफी की दुनिया है,
आज की रील की दुनिया है। तो अर्ली प्यूबर्टी आने के लिए हार्मोनल सप्लीमेंटेशन फीमेल को दिए जाते, हार्मोनल सप्लीमेंटेशन दिए जाते कि उनकी अर्ली प्यूबर्टी हो। अर्ली प्यूबर्टी हुई तो अर्ली प्रोस्टिट्यूशन, अर्ली रील्स में वो काम में आएंगी। सर ये सब चीजें इम्प्लीकेटेड है। सर इंपॉर्टेंट बात ऐसी है कि फैमिली स्ट्रक्चर, इसको प्रिवेंशन करना है, इसको प्रिवेंशन करना है तो सिर्फ कायदे से नहीं जमेगा। कितने भी बार फौजिया खान मैडम, आप कितने भी संशोधन कीजिए, जब तक समाज नहीं सुधरेगा बच्चों के ऊपर के अत्याचार थम जाना बहुत डिफिकल्ट। डॉक्टर अनिल जी, कंक्लूड नाउ। यस, कंक्लूड कर रहा सर कि जो प्रॉब्लम फैमिली रहती है, जो प्रॉब्लम फैमिली रहती है, वो प्रॉब्लम फैमिली में ये बच्चों के ऊपर उनको प्रेम चाहिए, उनको सर सहानुभूति चाहिए, उनको किसका सपोर्ट चाहिए। अब ऐसे लड़के, ऐसे बच्चे ये डिपेंडेंट होते हैं नेबर के ऊपर, ये डिपेंडेंट होते हैं प्रीचर के ऊपर, ये डिपेंडेंट होते हैं कोच के ऊपर, और उसके बाद में उनका एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है। तो फैमिली स्ट्रक्चर, जो भारत का फैमिली स्ट्रक्चर सभी रिलीजन का, सभी सोसाइटी का जो डिस्टर्ब हो रहा है, ये सब इसकी जड़ है। तो इसलिए फैमिली स्ट्रक्चर इंप्रूव होना चाहिए। सर कुछ पॉलिसी रिकमेंडेशन जो प्रैक्टिकल है लेकिन स्ट्रांग है कि सेफ चाइल्डहुड करिकुलम हर स्कूल में रहना चाहिए। ब्रीफली सेफ चाइल्डहुड करिकुलम रहना चाहिए। एज अप्रोप्रिएट एजुकेशन ऑन देयर सेफ्टी मेजर्स, बाउंड्रीज, रिपोर्टिंग, गुड टच बैड टच। गुड टच बैड टच ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है और वो हर स्कूल टीचर ने बताना चाहिए। सर पॉस्को की केसेस 1 साल के ऊपर नहीं लगना चाहिए। फास्ट ट्रैक पॉस्को कोर्ट विथ टाइम लिमिट, 1 year लिमिट टू द ट्रायल कंप्लीशन। तीसरा है ट्रेनिंग फॉर द पुलिस, टीचर्स एंड रिलीजियस एंड कम्युनिटी लीडर्स, सेंसिटिविटी फॉर द चाइल्ड कम्युनिकेशन, लीगल ड्यूटीज। बच्चे बताते ही नहीं, ये क्राइम होने के बाद में बताते नहीं क्योंकि पुलिस को पूछने की आदत नहीं। तो इसलिए हर पुलिस स्टेशन में ऐसे कम्युनिकेटर रहना चाहिए कि ऐसा बच्चा रहा। सर थोड़ा सा रह गया। तो दूसरा है प्रोटेक्शन एंड ऑडिट ऑफ हॉस्टल्स, मदरसाज, आश्रम, गुरुकुल, शेल्टर होम, एनी इंस्टीट्यूशन जो बच्चों को रख रही है, उनका मंथली ऑडिट होना चाहिए कि बच्चों को कोई तकलीफ है क्या। मैंडेटरी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एक साइकोलॉजिस्ट रहना चाहिए, स्पेशली पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में। और नेशनल डाटाबेस ऑफ रिपीटेड ऑफेंडर्स, ये ऑफेंडर एक बार नहीं करता है, बार बार करता है। सर इसलिए मैं इस सभागृह के माध्यम से यही चाहता हूं कि नो रिलीजियस बिलीफ, नो कल्चरल ट्रेडिशन, नो हिस्टोरिकल एग्जाम्पल कैन जस्टिफाई द सेक्सुअल एक्ट विद द माइनर। क्रिमिनल्स हु मिसयूज रिलीजन or culture are not protectors of the faith, they are betrayers of the faith and humanity. Sir, children carry no religion, no caste, no politics, only innocence and trust. Our duty is not to punish the offenders, but to prevent the possibility of any child ever feeling unsafe. So, we have to conclude with I am concluding the discussion that I will say that India will not tolerate any harm to the child. India will not accept any excuse for such crimes. India stands firmly, fully and forever with the children. Thank you, sir. धन्यवाद. थैंक यू। मैं माननीय सदस्यगण